Hello students. In previous video we had read about the central problems of an economy. We had discussed these 6 problems of an economy, that is what to produce, how to produce, for whom to produce, how to establish the level of full employment, how to achieve efficiency, the utilization of resources and distribution of production, and how to provide momentum to the process of economic development. In this video, we will discuss the solution of central problems in different economies. We all know that there are 3 major type of economies are found at present, that is capitalism, socialism and mixed economy. Therefore, we will study about a solution of central problem of these 3 economy only. And every type of economy had these problem, but their way of way to solve the problem are different. First of all, we will read the solution of central problem in capitalist economy. In capitalist economy, so first problem we had read, that is what to produce. In capitalist economy, price mechanism decide which goods will be produced and in what amount. Capitalist economy, the consumer decide which good will be produced in what quantity. Because in capitalist economy, the consumer had a sovereign position. There are many influential producers in this economy who have the ultimate objective of maximizing their profit. Price mechanism and profit motive. These are the 2 major characteristics of the capitalist economy. So, in the capitalist economy, all producers compete with each other in production of goods which are demanded greater amounts by consumer. तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें प्रोड्यूसर किस चीज पे ध्यान देता है कि जो कंज्यूमर है वो किस तरह की चीजों का डिमांड कर रहे हैं. जिन चीजों की डिमांड ग्रेटर अमाउंट में होती है उन चीजों के प्राइस भी हाई होते हैं और प्राइस हाई होने की वजह से प्रोड्यूसर एबल हो जाते हैं हायर प्रॉफिट अर्न करने में. और contrary to this, prices of these goods which have less demand are lower, so profit are so also low and producer manufacture such goods in lesser amount. तो what to produce का solution कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या दिया हुआ है कि जिन चीजों की डिमांड ज्यादा करती हैं, लोग ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूमर ज्यादा कर रहे हैं, उनके प्राइस प्रोड्यूसर हाई रखते हैं और इसकी वजह से उनको प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न हो जाता है. तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने क्या पढ़ा? 2 चीजें, एक प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू और दूसरा प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इन दोनों ही चीजों का ध्यान रखा जाता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हाउ टू प्रोड्यूस. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने पहले ही पढ़ा लिया है कि वो इंस्पायर्ड होते हैं विद द स्पिरिट ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट. तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एन आइडियल इक्वेशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेरियस रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज डन एट मिनिमम कॉस्ट. तो प्रॉफिट ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, और इसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए वो रिप्लेस करते रहते हैं किसमें, जो एक्सपेंसिव रिसोर्सेस को रिप्लेस करते हैं एफिशिएंट रिसोर्सेस में. जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो देखते हैं कि अगर लेबर किसी जगह पे किसी काम को या किसी जो भी प्रोडक्शन वर्क है उसको करने में अगर लेबर कम खर्च में मिल जाता, लेबर इज चीपर देन कैपिटल, then labor intensive technique will be employed. और अगर ऐसा देखते हैं
capital proves to be cheaper than labor, then capital intensive technique will be adopted. तो इस तरीके से प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करता है कि प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाएगा. थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. किन के लिए प्रोडक्शन किया जाए. तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कंज्यूमर हैं उनके लिए. क्यों, कैसे. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज डन फॉर दोज हु आर कैपेबल ऑफ पेइंग देयर प्राइस. तो प्रोडक्शन किन के लिए किया जा रहा है कि जो प्राइस पे करने में कैपेबल हैं. The income obtained by individual decide their purchasing power. Income of people is determined by the price of resource because resource maintain income in the form of wages, interest, land revenue and profit. हमने जो पढ़ा हुआ है पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर को जैसे वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लैंड रेवेन्यू किसको मिलता है, लैंड को प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलता है. तो जो भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, जो किस चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा और किसके लिए किया जाएगा, जो उस चीज के प्राइस को पे करने में कैपेबल हो. तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फॉर whom to produce. Next, we will discuss how to make full and optimum use of resources. So, in capitalism, price mechanism also helps in efficient use of resources, and resources which are limited or very useful fetch at higher price. Therefore, producer use such resources in case of utmost requirement of an इन इकोनॉमिकल मैनर. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फिर से एक बार क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी किससे हो रहा है, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू ही हो रहा है. और साथ ही साथ जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज करने की बात यहाँ पे आ गई है कि इकोनॉमिकल मैनर में उसको जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज किया जाए. लास्ट problem by providing inspiration through development and innovation. तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल नहीं बोलेंगे, ये प्राइस मैकेनिज्म से इंस्पिरेशन मिलता है किस चीज का, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर हैं उनको प्रॉफिट अर्न होता है. प्रॉफिट अर्न होने पर वर्क करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और इससे इम्प्रूवमेंट होता है. इम्प्रूवमेंट किसमें, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ production and retaining development. A firm is need to use the most appropriate technique of production in order to obtain maximum profit and to sustain in the market. तो फर्म जो भी किस टेक्निक को यूज करेगा, जो सबसे अच्छी टेक्निक हो जिससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, साथ ही साथ वो मार्केट में सस्टेन कर पाए. तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या पढ़ा कि बेसिकली प्रॉफिट मोटिव और प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए सभी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है. सो स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशलिज्म. तो सोशलिज्म इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी डिसीजन मेकिंग होती है और रिसोर्सेज होते हैं उसकी ओनरशिप किसके पास होती है, उसकी ओनरशिप होती है गवर्नमेंट के पास. और डिसीजन मेकिंग करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई जाती है और वही अथॉरिटी डिवाइड करती है या तय करती है कि किस तरीके से वर्कआउट होगा. जो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे, साथ ही साथ किन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा. मीन्स जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन किस चीज को ध्यान में रख के किया जाता है,
social objectives and resources on the basis of their ability. So जैसे कैपिटलिज्म में हमने पढ़ा कि सभी चीजें all things are defined by the price mechanism, but in socialism the price planning authority has to solve this problem. तो जो सोशलिज्म इकोनॉमी है उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कौन करता है? स्टेट और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती हैं और वो सभी चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करती हैं, प्लानिंग करती हैं और उसके बाद इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जाता है. बेसिकली इसमें ध्यान किसका रखा जा रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स का, कि सभी का वेलफेयर हो, साथ ही जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो. Third, we will read the solution of central problem in mixed economy. तो mixed economy का meaning हमने क्या पढ़ा था? Mixed economy means where the private sector and government sector jointly work together. The government prepares plan for a specific time period. The objective of production are defined in this plan and it is determined what will be the extent of participation of and production made by private and public sector in various sphere. तो गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्लान की प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कहाँ पे किस तरीके से वर्कआउट करेगा. तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म भी अपना रोल प्ले करती है. प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिसीजन रखता है किस हिसाब से, किस रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ओनली. बट हेयर इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड national interest and objective of the plan. The public sector takes decision regarding the solution of to this problem on the basis of social welfare. तो जो जहाँ यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक प्रॉफिट अर्निंग मोटिव पे तो काम करता है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखता है नेशनल इंटरेस्ट के बारे में और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग बनाई हुई है उसके मोटिव्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसको ध्यान में रखते हुए. वहीं जो पब्लिक सेक्टर है वो डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करती है कि सोशल वेलफेयर का वर्कआउट हो सके. तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो है उनको कई तरह के फ्रीडम भी मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन पे जरूर कंट्रोल रखती है. कंट्रोल कैसे रखती है? लाइक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी. तो ये सारे पॉलिसीज किस चीज को ध्यान में रखते हुए कि नेशनल इंटरेस्ट, देश का हित सोचते हुए ही हर एक तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिक्स्ड इकोनॉमी में ढूंढा जा सकता है. तो इस तरीके से सॉल्यूशन टू दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज डिराइव्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म. तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने तीनों इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने डिस्कस किया. हमने देखा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राइस मैकेनिज्म और साथ ही साथ प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. वहीं इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है वो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. साथ ही मिक्स्ड इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो प्लान के अकॉर्डिंग किया जाता है और साथ ही साथ इसमें हेल्प लिया जाता है. प्राइस मैकेनिज्म का भी ध्यान रखा जाता है. इसमें जो भी वर्कआउट किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, इनको ध्यान में रखते हुए वर्क किया जाता है.